اچھا، جیسا آپ نے خود مینشن کیا ہے جہاز بھائی کہ ماشاءاللہ آپ نابالغی کی عمر میں تھے، 12 سال کے تھے، 12-13 سال کے تھے جب آپ کی بابا حضور سے پہلی ملاقات ہوئی. جی جی. تو ہم نے سنا ہے کہ اس ٹائم ظاہر سی بات ہے آپ کا بچپن ہی چل رہا تھا ایک طرح سے، تو آپ نے اپنے بچپن میں بابا حضور کو بہت تنگ کیا ہے. اور شادی جس ٹائم پر میری ہوئی سن 2000 کے اندر، جی، تو یہ سمجھے کہ اس ٹائم پر بھی جو ہے بابا حضور سے دوری تھی. اچھا اعجاز بھائی یہ بتائیں کہ ہم نے ایک بات سنی آپ کے بارے میں نا، ہم نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا غصہ بھی کافی مشہور ہے. آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ بس بھائی کام ہونا چاہیے، کوئی بیچ میں فضول بات نہ ہو، بس کام پہ دھیان دو اور کام جلدی سے پراپر مطلب کوالٹی کے ساتھ کام ہونا چاہیے. اگر کوئی بیچ میں کوئی فضول بات مذاقن بھی کر دیتا تو آپ ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کو. امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا افعل خیر امتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوٹیوب کا معروف چینل امت کا بھلا کا پروگرام امت کا بھلا پوڈ کاسٹ میں آپ کا میزبان محمد سلمان رضا عطاری شاذلی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے یہ ہمارے انتہائی قابل احترام اور امت کی بھلا ٹیم میں ایک نمایاں مقام رکھنے والی شخصیت ہے. ان کی تعارف میں ایک شعر پڑھوں گا جس کو آپ بخوبی اور غور سے سنیے گا. بابا حضور نے دیا، بابا حضور نے دیا ہے لقب چہیتے کا، بابا حضور نے دیا ہے لقب چہیتے کا. پوچھا کہ معلوم ہے کیا مطلب تو ذرا بتا، دیکھ کر دل میں کہا، دیکھ کر دل میں کہا آپ ہی بتائیے گا، دیکھ کر دل میں کہا آپ ہی بتائیے گا. بابا حضور نے کہا نخرے سے ہے بھرا تو، بابا حضور نے کہا نخرے سے ہے بھرا تو، پھر بھی لگا ہے پیارا تو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پھر بھی لگا ہے پیارا تو، چاہت کا ہے حصہ تو. کیا بات ہے، پھر بھی لگا ہے پیارا تو، چاہت کا ہے حصہ تو. معلوم ہے تمہیں وہ، معلوم ہے تمہیں وہ، اعجاز احمد ہیں وہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ حضرت، میری خوش قسمتی کہ آج میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے مجھے. حضرت اس شعر کے بارے میں بتائیں آپ کہ اس شعر میں کیا حقیقت پنہا ہے یا پھر بس الفاظوں کا گیم ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیں. حضرت یہ جو شعر لکھا ہے جی، اس میں 100% سچائی ہے. اللہ اکبر، ایک رتی بھر بھی جو ہے اس میں اللہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. مطلب کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کا ایک ایک الفاظ جو بیان کیے گئے بہت ہی پیارا جی، اور حقیقت پر مبنی ہے. ایسا ہی ہے. کیا بات ہے. مطلب آپ نے بابا حضور سے واقعی میں پوچھا تھا کہ چہیتے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، میں نے پوچھا نہیں، لیکن بابا نے جو ہے لیکن آپ نے دیکھا تو تھا کہ آپ بھی بتا دیجئے کیا مطلب. دیکھا بھی ہے، محسوس بھی کیا ہے، اور مطلب ماشاءاللہ سے جو ہے بچپن سے ہی جی، حضور کی صلی اللہ علیہ جو کرم نوازی اور بابا کی شفقت، جی، کہ جب بالکل ہی چھوٹی عمر میں جو ہے الحمدللہ ماشاءاللہ، بابا کی جو صحبت اختیار کی جی،
तकरीबन 12-13 साल की उम्र होगी। अच्छा, मतलब उस टाइम तो बाबा हुजूर अपनी मतलब जवानी में होंगे और आप तो नाबालिगी की उम्र में होंगे बिल्कुल। मतलब ज़्यादा उम्र नहीं थी बाबा की, जी, मतलब ऐसी थी। कौन सा सन था वैसे उस टाइम? ये 89 की बात है ये। तो 89 में बाबा हुजूर भी बिल्कुल अपनी जवानी के पीक पर होंगे, 20-21 साल, और आप? कम थी, उससे भी कम थी। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी, और आप अपनी नाबालिगी की उम्र में थे? 12-13 साल की तकरीबन उम्र थी जब क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सोबत की। मतलब आपकी जवानी भी शुरू नहीं हुई थी उस नहीं टाइम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो मस्जिद में नमाज पढ़ने का शौक पैदा जी, हुआ। जी जब मस्जिद में गए, हनफिया मस्जिद के अंदर, जी, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे निहाल भाई से मुलाकात हुई। माशाल्लाह। तो जब इनसे मुलाकात हुई तो माशाल्लाह इन्होंने शिफकत फरमाई, अच्छा, कुरान शरीफ भी पढ़ाया, उस्ताद भी बने। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनमें माशाल्लाह से हमने हर एक क्वालिटी देखी। अच्छा, बाप की शफकत, बेशक दोस्त की मोहब्बत, बेशक, और बड़े भाई की चाहत, बिल्कुल हर चीज़ मतलब जो है वो नुमाया हो गई बिल्कुल ऐसा ही है। और महसूस किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा हजरत, ये बताएं, जैसे शेर में कहा गया है कि आपको लक़ब मिला चहीदे का, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब आपको ये मकाम किस तरह से मिला, किस तरह से लक़ब मिला? क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, एक मुर्शिद अपने एक मुरीद को लक़ब दे, वो भी चहीदे का। इसके बारे में बताएं, आप क्या समझते हैं कि ये तो मेरी खुशनसीबी है हज़रत। खुशनसीबी तो है बेशक माशाल्लाह, लेकिन उसके अलावा एक इंसान होता है वो सोचता है कि यार मैंने ज़िंदगी में फ़ला कोई नेक अमल किया था, तो हो सकता है उसकी वजह से मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मकाम दिया हो। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ? जो पहले तो आप दुआ करें कि नेक काम करना शुरू कर दें, अल्लाह अकबर, ये तो नेक बन आजी जाए। हज़रत आपकी। नहीं ऐसा ही है, हकीकत में मबनी है, पर कोशिश करते हैं नेक काम करने की, अल्लाह कबूल फरमा ले। माशाल्लाह। फिर भी कुछ तो होगा ऐसा आपके जहन में, कभी आपने सोचा होगा यार? बस ये अल्लाह की करम नवाजी है कि जो हज़रत की जो है निगाह शफकत है। बेशक। बाकी हमें तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, मतलब कि जो जिसमें बात कही जाए, अच्छा, ये माशाल्लाह, शफकत है, उनकी निगाह है बेशक बेशक कि उन्होंने जो है शफकत फरमाई। बेशक। अच्छा, जैसा आपने खुद मेंशन किया है जाज भाई के माशाल्लाह आप नाबालिगी की उम्र में थे, 11-12 साल के थे, 12-13 साल 12-13 साल के थे जब आपकी बाबा हुजूर से पहली मुलाकात हुई। जी जी, तो हमने सुना है कि उस टाइम जाहिर सी बात है आपका बचपन ही चल रहा था एक तरह से, तो आपने अपने बचपन में बाबा हुजूर को बहुत तंग किया है। बहुत तंग किया। कैसा ज़्यादा। तंग किया? जो हमें तो समझ ही नहीं थी उस टाइम पर, अच्छा, ना समझ जी। थी, ना अकल थी, जी और ना इतनी मालूमात थी। बिल्कुल, अब इस उम्र में तो आपको पता है चाहे कुछ भी हो, जी करना वही जो समझ में आता है। जी, उस टाइम पे मतलब बाबा के साथ बैठते भी थे, माशाल्लाह। दर्स में भी बैठते थे, जी। नमाज भी पढ़ते थे, पतंग भी उड़ाते थे। तो तंग किस तरह करते थे? मतलब दर्स के बीच में से उठ के चले जाते नहीं थे? ऐसे तंग करना नहीं था। अच्छा, मतलब वो तो माशाल्लाह पूरा सिलसिला रहा है, जी और दर्स अपनी जगह पर, नमाज अपनी जगह पर, माशाल्लाह, और मदरसा रात को अपनी जगह पर। माशाल्लाह। लेकिन दिन में जो है स्कूल के बाद जी जी पतंग उड़ा रहे हैं जैसे। जी जी एक दफा तो बाबा जो है वो तशरीफ लेकर आए, जी, तो मैं पतंग उड़ा रहा था, अच्छा, तो उन्होंने उसी टाइम पकड़ लिया। पकड़ लिया। क्या ये दोनों मिलके पतंग उड़ाते हैं? पिटाई तो नहीं लगी नहीं, आपकी? पिटाई नहीं लगाई माशाल्लाह, अल्फाजों की पिटाई लगी, तो माशाल्लाह, लेकिन जो है वो वाली पिटाई नहीं लगी, हाथ वाली या डंडे वाली, जी जी वो नहीं। लेकिन फिर बाबा ने समझाया कि मतलब ये बात अच्छी नहीं है, जी जी। इससे जो है बचो। और इसके अलावा ऐसी क्या चीज़ है जिसमें आपने तंग किया होगा बाबा हुजूर को? ये बाबा बेहतर जानते हैं। क्या बात है। अच्छा एजाज भाई, जैसे आपने खुद फरमाया है कि माशाल्लाह बाबा हुजूर ने आपको कुरान शरीफ की भी तालीम दी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने एक और एपिसोड किया था, एपिसोड नंबर 2 था, आपके जो बड़े भाई साहब हैं जी जी, सैयद बिलाल रज़ा शाह दामत बरकातुहुमुल आलिया, उन्होंने भी ये बात हमें बताई थी कि माशाल्लाह उन्होंने भी बाबा हुजूर से कुरान शरीफ पढ़ा है। जी जी, ऐसा ही है। लेकिन हमें एक जगह से रिपोर्ट मिली है कि माशाल्लाह आप और शाह साहब जो हैं दोनों ही बाबा हुजूर से कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, जी जी, लेकिन आप इस मामले में माशाल्लाह शाह साहब से भी सबकत ले गए। आपने शाह साहब से पहले इतनी तेज़ी से कुरान शरीफ कैसे कंप्लीट कर लिया था? उसकी वजह ये थी कि मैं सुबह जो है वो फारूकी मस्जिद के अंदर जो है मदरसा पढ़ने जाता था, जी, और तजवीद के साथ जो पढ़ना था वो बाबा के साथ था अच्छा, रात को। माशाल्लाह, तो जी। दो तरफ जब मैं पढ़ता तो माशाल्लाह से वो तेजी सा जो
आगे बढ़ना शुरू हो गए, पढ़ना शुरू हो गए, अच्छा, तो इसलिए पहले पढ़ लिया। माशाल्लाह। मतलब सुबह भी आप पढ़ते थे, जी, जी। रात में भी रात पढ़ते में भी थे, ऐसे ही। ओवर टाइम लगाते थे मतलब Overtime। मदरसे में, क्या बात है, जी जी ऐसे ही। माशाल्लाह हज़रत, माशाल्लाह। अच्छा एजाज भाई ये बताएं, माशाल्लाह जैसा आपने बताया कि 1989 से आपका साथ है बाबा हुजूर के साथ, जी जी। तो अगर इसको जमा किया जाए तो तकरीबन 11 और 23 34 साल हो गए, 34-35 साल तकरीबन 34-35 साल हो गए, माशाल्लाह बड़ी बात है काफ़ी। तो इस दौरान कभी कोई ऐसे हालात भी पैदा हुए आपके कि आपकी किसी भी वजह से थोड़ी मतलब दूरी हो गई हो, या आपका मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया हो कारोबार के हवाले से, किसी भी मामलात के हवाले से? दरमियान में असल में कुछ लोग ऐसे आ गए थे, अच्छा, इस्लाम भाई थे अपने, जी, कि उन्होंने जो है आपस में रंजिश पैदा की अल्लाह अकबर। और हमारी कई सालों की जो है मतलब दूरी हो गई थी। ये तो होता है हजरत, जहाँ मतलब खैर का काम होता है ना, तो वहाँ पे शैतान घुस जाता है अपने मतलब मामला बिगाड़ने के लिए, और ये तो होता है। जी ऐसा ही है। तो उन्होंने जो अपने जैसे बात कुछ होती थी, जी, सामने बयान कुछ की जाती थी, अच्छा, तो इस वजह से दिल के अंदर रंजिशें पैदा हो गई थी। लेकिन बाबा जो है फिर भी शफकत फरमाते थे, क्या बात है, बज़ाहिर तो दूर थे, जी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो शफकत फरमाते रहते थे। क्या बात, क्या बात, और शादी जिस टाइम पर मेरी हुई सन 2000 के अंदर, जी, तो ये समझे कि उस टाइम पर भी जो है बाबा हुजूर से दूरी थी, उसके बावजूद भी आपने शिरकत की थी मेरी शादी में। अच्छा, माशाल्लाह, जी हाँ, माशाल्लाह, क्या बात है। मतलब ये बुजुर्गों का तरीका तालीम होता है कि वो उस टाइम भी जो एक क्रिटिकल माहौल था, एक मतलब आजमाइश वाला एक टाइम था, तो उसमें भी बाबा हुजूर ने यही तालीम दी कि यार देखो, अगर बातचीत नहीं भी हो रही तो फिर भी मैं खुद से आया हूँ आपकी शादी में शरीक बेशक होने बेशक, के ऐसा ही लिए। है, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। वरना हम आजकल देखते हैं कि अगर किसी से थोड़ी बातचीत में कमी वाक़ई हो जाती है तो बंदे एक दूसरे की शक्ल भी देखना गवारे नहीं गवारा करते, नहीं है, ऐसा ही। और मतलब और भी आगे तक कहानियाँ चली जाती है। जी, मतलब माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी बात है ये। बेशक, अगर समझे तो, ना समझे तो कुछ भी नहीं है। बेशक, समझने वाले का तो इशारे ही काफी जी, होते हैं। बिल्कुल। बड़े होने के बावजूद मतलब बाबा हुजूर खुद आए, मतलब बिल्कुल आपकी ऐसे ही, शादी में। ऐसे ही। क्या क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एजाज भाई ये बताएं कि माशाल्लाह कुछ साल, वैसे तो हर साल ही तकरीबन यहाँ उम्रे की कुरानंदाजी होती है एतकाफ में, तो कुछ साल पहले हमने देखा कि माशाल्लाह यहाँ से फैज़ अत्तार मस्जिद से एक अजीम व शान काफ़िला गया, उम्रे की सआदत हासिल की उन्होंने, उनमें आप भी थे माशाल्लाह। जी जी। तो उस सफ़र के बारे में बताएं, उस काफ़िले के बारे में बताएं हजरत। सलमान भाई, वो काफिला एक जिंदगी का यादगार काफिला है। बेशक, पहले तो ये काफिला बाद में बना, पहले तो उसके पहले वाली बात जो आपने की कि मैंने उसमें शिरकत की, जी, जी, तो ये समझ लें कि ये भी हजरत की निगाह शफकत थी। बेशक, और आपने ही जो है मुझे मदीने भेजा, अल्लाह टिकट दिया, अकबर, अल्लाह ठीक है। अकबर। और कुरानदाजी में मेरा नाम नहीं आया था। अच्छा, कुरानदाजी में तो इमाम साहब का जी, और मुफ्ती साहब का आया था, जी, और उससे पहले जो है शीजान भाई का और अंसर भाई का आया अंसर था। भाई का आया था। तो इस तरीके 4 जो कुरानदाजी थी 2 साल के अंदर, जी, तो वो चारों वो और 5वां में था। क्या तो बात मुझे जो है क्या मतलब बात, आपने जो है मदीना शरीफ का टिकट दिया, अल्लाह अकबर। और वो काफिला माशाल्लाह से इतना प्यारा काफिला बना जी, कि हम 15 अफराद पर मुश्तमिल वो काफिला था। 15 अफराद थे वो जी काफिले जी, में, माशाल्लाह। उसमें इस्लामी बहनें भी थी, अच्छा, माशाल्लाह, और हम लोग भी मौजूद थे, मुफ्ती साहब भी थे, इमाम साहब भी थे। जी, तो बहुत ही प्यारा मतलब जो है वो काफिला रहा। अंसार भाई जो है माशाल्लाह जी, उसमें माशाल्लाह, बहुत पेश रहे, माशाल्लाह। और ये समझ लें कि हमारे वो वजीर खुराक भी थे, अच्छा, यानी खाने का वज़ीर तमाम खुराक। इंतजाम उनके हाथ में था। अच्छा, माशाल्लाह, आज माशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी कब्र पर खूब आमीन, रहमत और नज़र फरमाए। वो आमीन, दुनिया में नहीं है, आमीन। लेकिन हमारे दिलों में आज भी वो बेशक, मौजूद है, बेशक मौजूद है, और उनकी जो है मोहब्बत, उनकी शफकत बहुत रही, बेशक, और कदम कदम पर जो है वो हमारे साथ रहे, जी, और आजमाइशें भी साथ में आई। जी, जी, जिस टाइम मदीने पहले तो मक्के गए, मक्के में जाने के बाद हम दूसरे दिन से जो है उनके लिए, उनको डायलिसिस का मसला था, जी, तो दूसरे दिन से ही जो उनके लिए हम लोग अस्पताल तलाश करना शुरू किया। अच्छा, और पहली मरतबा हम रात को इशा के टाइम निकले थे या मगरिब टाइम निकले थे, जी, तो पूरी रात और पूरा आधा दिन, यानी जुम्मे की नमाज के बाद हम लोग जो है फारिग हुए, उनको डायलिसिस से फारिग करवा के फिर हम लोग जो है
दोबारा वापस जो है हम लोग मक्के शरीफ आए और अपने होटल आए। तो इतना लंबा अरसा हमने जो मतलब तकरीबन पूरी रात वहाँ पर जो है ना परेशान रहे, कोई बोले यहाँ चले जाओ, कोई बोले वहाँ चले जाओ। अच्छा एक हॉस्पिटल पहुंचे जी। तो उन्होंने तकरीबन 4-5 घंटे में वहाँ रखने के बाद भी बोला कि आपके डायलिसिस यहाँ नहीं होंगे, अच्छा आप फला जगह चले जाएं। अच्छा तो इस तरीके से जो है उन्होंने वहाँ पर जो है भेजते चले गए और फिर जो है वो उनकी डायलिसिस हुए। डायलिसिस होने के बाद फिर हम वापस जो है वो अपने होटल आए, फिर हरम शरीफ के करीब पहुंचे। हजरत ये भी एक वो तरीका होता है कि अपने बंदों पर रहमत बरसाने का, क्योंकि जहाँ जितनी बड़ी आजमाइश होती है उसका जो इनाम है वो भी इतना बड़ा ही होता है। जी ऐसे ही है। और आप तो माशाल्लाह वैसे भी उम्रे के लिए सफ़र पे थे और जी, जी। उसमें फिर इस तरह की आजमाइश, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि माशाल्लाह उस उम्रे का सवाब कहाँ से कहाँ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत बेहतर ही होगा, ज़्यादा ही होगा। बेशक और फिर वो जो है और गए भी मदद हो रही थी वहाँ पर। माशाल्लाह। अच्छा अब मदीने में जब हम पहुंचे तो वहाँ पर एक होटल, एक उसमें हॉस्पिटल पहुंचे जी। तो कहा जनाब आपका यहाँ डायलिसिस जो है फुला हो जगह पे चले आए। अच्छा अब बाहर निकले जी तो एक बिल्कुल यंग आपकी तरह बिल्कुल एक कार के पास एक बंदा खड़ा हुआ और हमने उससे उर्दू में बात करी। वहाँ तो जी। तकरीबन अरबी चलती है। हाँ बिल्कुल हमने ऐसा उर्दू में बात की कि हमें फुला हॉस्पिटल जाना है, जी। कि आप चलेंगे? हाँ बोला बिल्कुल चलेंगे। क्या बात है। तो हमने उनसे बोला क्योंकि हमें पहले बता दिया गया था कि आप जो है वहाँ पर पहले तय करके बैठिएगा, अच्छा आपने जो सवारी करनी है पहले तय कर लें फिर बैठना। सही है। तो हमने उनसे बोला आप क्या लेंगे? बोला आप जो समय दे देना। अच्छा मैं फिर भी बता दें हजरत आप जी जी अपनी गाड़ी लेके जाएंगे बिल्कुल और सफर भी है उसमें खर्चा भी है, हाँ। आप लेके जाएंगे, आप बताएं तो सही। बोले जो आपके समय दे देना। अच्छा हम बैठ क्या गए। बात है। अब बैठने के बाद जब हम मदीने शरीफ चलती में जो उस हॉस्पिटल जाने लगे ना, चलते रहे जी, चलते जी। रहे तो काफी देर होने के बाद जो मुसलसल फोन पे भी बात कर रहे थे अच्छा और अरबी के अंदर बात कर रहे थे। हमें अरबी तो आती नहीं है, ड्राइवर हजरत ड्राइवर जो थे मतलब। अच्छा अब हम तीनों डर भी रहे कि ऐसा ना हो कि जनाब वो किसी को बुलाया तो वो बोले हम फुला जगह से इस तरह से। हाँ, यहाँ तो ऐसा ही होता है आमतौर पर। तो हम डर भी रहे कि मतलब ये ऐसा ना हो कि हमें जो है हमारा जो भी सामान है जो भी जी, हमारे जी, पास जी। मौजूद है सब ऐसा ना हो कि वो लेके हाँ। चले जाएं। जी तो वो जब वहाँ पहुंचे उन्हें हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकने के बाद बोला कि आपका हॉस्पिटल आ गया है। हमने हजरत आपको क्या देना है? बोला आप जो है सिर्फ दुआ में याद रखिएगा और आप जाइए हॉस्पिटल। तो मतलब किराया भी नहीं लिया किराया भी नहीं आपसे? लिया उन्होंने और उन्होंने जो है छोड़ दिया हम लोगों को। और उस हॉस्पिटल के बाद तो कहीं नहीं भेजा आपको? नहीं किसी उसके ने? बाद कहीं नहीं भेजा। फिर वहाँ पर उन्होंने क्या डॉक्टर ने बात है। चेक किया और उन्होंने डायलिसिस उनके किए माशाल्लाह। माशाल्लाह क्या बात है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा और यादगार सफ़र रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एजाज भाई ये बताएं कि माशाल्लाह हमारे नाजरीन को भी पता है और सबको ही पता है माशाल्लाह कि बाबा हुजूर जो हैं वो नातिया शायरी करते हैं माशाल्लाह से ना। बेशक। तो इसी शायरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में इशारतन आपका भी जिक्र किया गया है माशाल्लाह। तो जी जी ये बताएं किन सूरतों में किया है ये जिक्र? एक बाबा ने नाद लिखी थी जी माशाल्लाह। काफी पहले, सालों पहले। जी अब उसका शेर मेरे जहन से निकल रहा है कि मुझे अपनों ने। शेर ज़रूरी नहीं आप बताएं, उसका मफहूम तशरीह वगैरह कुछ इस तरह का बता दें ताकि हमें भी पता चले माशाल्लाह। इतनी बड़ी सादत की बात है। उसमें जिक्र जो था ना वो ये था कि हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की जा रही थी जी कि या रसूल सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुझे जो है अपनों ने जो है सताया अच्छा और मेरा दिल दुखाया जी और आप ही हैं जो मतलब मेरी मतलब मदद कर सकते हैं और मेरी इमदाद रसाई कर सकते हैं। और इस तरह की उसमें मतलब जो है वो अशार थे जी। और काफ़ी अशार उस पर लिखे थे लेकिन मुझे अभी जहन में नहीं है, वरना मैं आपको अच्छा। मजीद इसके बारे में बताता। अच्छा। तो बहरहाल ये सिलसिला काफ़ी पहले हुआ था। कौन कलाम कौन सा था थोड़ा ये बता सकते हैं? कोई तो जहन में नहीं आ अच्छा, रहा। अच्छा, चले कोई बात नहीं है। हाँ सरकार मेरे कल्ब को अपनों ने सताया अल्लाह अकबर और जिसको मैंने चाहा उसी ने सताया। अल्लाह ये उसका मतलब था। जी तो बस ये बस मैंने आपको अर्ज की थी ना शुरू में जी जी कि ये जो है ना एक नादानी वाली कैफियत थी उस टाइम पर, ना समझी की। बिल्कुल तो बस ये ऐसा हो गया। ये भी बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। क्या बात है आपकी।
اچھا اعجاز بھائی یہ بتائیں کہ ہم نے ایک بات سنی آپ کے بارے میں نا، ہم نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا غصہ بھی کافی مشہور ہے. آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ بس بھائی کام ہونا چاہیے، کوئی بیچ میں فضول بات نہ ہو، بس کام پہ دھیان دو اور کام جلدی سے پراپر مطلب کوالٹی کے ساتھ کام ہونا چاہیے. اگر کوئی بیچ میں کوئی فضول بات مذاقن بھی کر دیتا تو آپ ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کو. تو یہ حقیقت ہے؟ بالکل حقیقت ہے سر. اللہ اکبر. اب جو کام آپ کو دیے گئے جی جی تو اب آپ نے اپنا فوکس اس کام کی طرف رکھنا ہے. بالکل سمجھے؟ جی اب کچھ ہمارے نادان دوست، ہمارے بھائی جو ہیں وہ جی ساتھ میں وہ جب کام میں دخل اندازی کرتے تو مجھے اس معاملے میں غصہ بہت زیادہ آتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے. جی. اس حوالے سے کوئی واقعہ سنا دیں حضرت، کبھی کیا ہوا ایسا کہ آپ نے، نام بھلے نہ لیں کسی کا، اگر ویسے ہی سنا دیں ہمیں پتہ چلے تھوڑا. ایک ٹائم پہلے جو ہے بابا، جیسے بڑی گرمی ہوتی ہے نا، جی جی تو اس میں پہلے بیک گراؤنڈ کی اسکرین بنتی تھی. جی ہم لوگ یہاں مل کے جو ہے بیک گراؤنڈ کی جو جی جی پینافلیکس کی اسکرین ہوتی ہے نا، تو اس کو پہلے تقریباً ہفتوں پہلے اس کو تیار کرتے تھے. اچھا اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر. ماشاء اللہ. تو ایک مرتبہ بابا اور ہم لوگ مل کے جو ہے نا وہ ترکیب بنا رہے تھے اس اسکرینوں کی. جی. اب ایک بندہ آیا، اس کا اس کام سے تعلق الف سے بے کچھ بھی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے مطلب سے کرنا کیا ہے. جی. اب وہ آیا کہ اس نے کہنے لگے جناب بابا کو ایسے کر لیں، ایسے کر لیں. اس میں بھی شامل تھا، میں دیکھ رہا ہوں اس کو. صحیح ہے. تو بابا نے جو ہے نا سختی سے کہا بھائی میں نے جو آپ سے مشورہ نہیں مانگا. بالکل صحیح ہے. آپ مشورہ نہیں دیں، صحیح. آپ کام کریں خالی. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہے مطلب جیسے میرے کو الحمدللہ سعادت ملتی ہے کہ میں ہر سال جو ہے وضو خانہ بناتا ہوں بڑی گیارہویں کے اندر. ماشاءاللہ بہت بڑی سعادت ہے حضرت. الحمدللہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین. اور واش روم بھی بنتے ہیں لیڈیز میں. اب جو ہے اب میں ایک چیز سمجھ رہا ہوں، تقریباً 8-9 سال سے ہم لوگ وہاں بنا رہے ہیں. جی. اور ایک بندہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو تو پورا ایکسپیرینس ہو. مجھے پتا ہے کہ مطلب اس کی چال کس طرح لے کے چل رہی ہے، کہاں پر کیا سیٹنگ بنانی ہے، ترکیب بنانی ہے. بالکل. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آ کے مجھے مشورہ دے. ہاں یہ تو ہٹنے والی بات ہے حضرت. مطلب کہ دماغ پر لگ جانے والی بات ہے. بالکل. اور اچھے بھلے انسان کو برا لگتا ہے. بالکل ایسا اور ہی. پھر میں جو ہے نا میں چاہتا ہوں، اور اس سال ماشاءاللہ بابا نے ایسے ہی کیا جی کہ جو اضافی افراد تھے نا جی جی ان کو سائڈ کر دیا. ہاں یہ بس بالکل جو ایسا کام کے تھے نا، ہم 3 افراد یا 4 جی افراد جی. تھے، اس میں سے ایک چلے گئے تھے، 3 ہم لوگ بچے تھے. تو ہم لوگ بڑے پرسکون طریقے سے ہم نے وضو خانہ بنایا، ماشاءاللہ. کیا واش روم بات. بنایا، جی اور وقت سے پہلے ہر چیز تیار ہو گئی. زبردست. اب جتنے ذہن زیادہ ہوتے ہیں، جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس میں کام کم ہوتا ہے، جی باتیں مشورے زیادہ ہوتی ہیں. بالکل صحیح کہا تو حضرت. اس میں بندہ کام کرنے والے کنفیوز ہوتا ہے. جی تو مجھے پسند نہیں ہے کہ زیادہ لوگ نہ ہو، تو اس لیے مجھے تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے. یہ فطری عمل ہے، قابو نہیں رہ پاتا میں. کبھی اس غصے میں آپ نے کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی کو لپیٹ دیا؟ نہیں ایسا نہیں، بس یہ زبانی بات. وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جی. لپیٹنے سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. مطلب زبان سے نکلا ہوا جو الفاظ ہوتا ہے وہ مطلب چماٹ وغیرہ سے تو زیادہ ہی وزن رکھتا ہے. وزن رکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. صحیح کہا. اچھا اعجاز بھائی ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں میرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بابا حضور کے ساتھ بھی کافی سفر کیا ہے. الحمدللہ. آپ نے لاہور کا بھی سفر کیا، حیدرآباد کا بھی ماشاءاللہ آپ نے سفر کیا، ملتان کا بھی ماشاءاللہ آپ نے سفر کیا. تو اپنے ان سفروں میں سے کوئی ایسا ہمیں بتائیں واقعہ کہ جس کو سن کے ہمارا اور ناظرین کا دل جھوم اٹھے. ویسے تو ماشاءاللہ سے جو ہے بابا حضور کے ساتھ جو ہے بچپن سے ہم لوگ. جی. اب میں آپ کا جو سوال ہے اس کے جواب جی 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 اس کے بعد دوں گا. اچھا اچھا. پہلے تو آپ یہ پوچھیں بابا حضور کو آپ نے پایا کیسا. جی بالکل میں ادھر ہی آنے والا شاید تھا. بھولنا پوچھنا بھول گیا. اب یہ ادھر یہ بھی تو اب آ جائیں آپ. تو الحمدللہ میں بچپن سے ہی مطلب جو ہے پہلے ہم نہال بھائی کہنے کی عادت تھی. جی. اب بابا کہنے کی تھوڑی عادت ہو گئی ہے. تو بچپن سے الحمدللہ نہال بھائی کے ہم لوگ ساتھ ہیں. جی جی. اور ماشاءاللہ نہال بھائی میں جو ہے نا وہ کوالٹیاں موجود ہیں کہ جو کہ حقیقت میں ہونی بھی چاہیے. بالکل ہر طریقے سے. جی. شریعت کے حوالے سے. اور اچھا آپ کو جو ہے میں نے ایک چیز میں نے نوٹ کی. جی جی.
पहले हम लोग जो है जैसे ज़कात फितरा जी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के लिए इकट्ठा किया करते थे जी और बकरीद पे खा लें, जी तो उसमें से हमारे कुछ ऐसे नादान इस्लामी भाई भी थे कि नियाल भाई ऐसा करते हैं जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग 1 लाख जमा करके हम दावत इस्लामी मरकज़ को देते हैं, जी अगर इसमें से 10,000 रख लें अपने ऊपर खर्चा करें तो क्या जाता है? मजदूरी के तौर पे। मजदूरी के दौर पे अपना जो है वो कुछ भी समझ लें हाँ, कि हम अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं दिन में, खाना या खा रात लेते में, हैं या चाय उसमें अपने वगैरह कपड़े पी बना लेते हैं, या मतलब उस टाइम पे 10,000 बहुत होते थे। बिल्कुल। तो इस पर निहाल में बड़ी सख्ती से, ये बिल्कुल अच्छा, बाई फेस बात है कि बिल्कुल सख्ती से मना किया माशाल्लाह। कि आपने अगर कुछ खाना है तो मुझसे खाएं, जी आपने अगर जो है कुछ पहनना है कपड़े तो मैं सिला के देता हूँ आपको, माशाल्लाह, क्या बात है। लेकिन इसमें से 1 रुपया भी अमानत में से खयानत नहीं कर सकते हम। क्या बात है। अगर हमने 1 लाख 1 रुपया जमा किया है जी, तो हमने मरकज में 1 लाख 1 ही जमा कराना है, राउंड फिगर नहीं देना। नहीं देना। हाँ, और आपने सख्ती की इसमें, और वो सख्ती आज तक हम देख रहे हैं। ये तो देख रहे हैं माशाल्लाह। इस यही वजह कि वो जो करने वाले थे आज वो कहाँ हैं और बिल्कुल, माशाल्लाह बाबा हुजूर कहाँ हैं। बिल्कुल, क्या बात है माशाल्लाह। वो तकवा, वो परहेजगारी और वो आपकी जो है वो फर्मा बरदारी भी कहेंगे इसको, जी, लाजमी बात है कि आप बिल्कुल। मरकज के फर्मा जी, बरदार जी, जी, रहे बिल्कुल, बेशक और डिफाल्टर नहीं हुए। बेशक। अच्छा, जब लाहौर मुल्तान में इज्तिमा होते थे मतलब जी, जी। बैनुल अक़वामी सतह पर, जी तो ट्रेनों का किराया आपको बोगी मिलती थी। जी अब कई इस्लाम भाई जो वो जैसे मिसाल के तौर पर 80 अफराद लेके जा रहे हैं, किराया 100 का वसूल कर रहे हैं, 80 का जमा करा दिया, 20 बाकी का 20 का जो है वो आपस में खर्चा कर लिया, कुछ भी कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं, आपके यहाँ याद था कि अगर वो कोई बच्चा भी साथ में होता था ना, उसका किराया भी आप जो है काउंट करके मरकज में जमा कराया करते क्या थे। बात है तो ये मतलब तकवा अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से देखने को मिला, माशाल्लाह, तो और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। माशाल्लाह, और खिलाफ शरा कोई अमल हमने नहीं देखा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा करम है, क्या बात। और उन्हीं की सोबत की वजह से आज हम भी कोशिश करते हैं जी कि हम भी इसी तरह की मतलब जहन में बात रखें, माशाल्लाह। और कोई ऐसा ना हो कि जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं 11वीं का या मतलब, जी जी तो उसमें ये नहीं कि हम पैसे जो है वो इधर उधर की जो है वो इजाफी खर्च करते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं अगर जहाँ पर 1000 खर्च होने तो हम कोशिश 800 खर्च करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो भी हमारे 200 भी बचे, बच्चे वो काम आए, इसराफ ना हो, ज़ाया ना हो। तो मयाना रवि से चलते अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो सफ़र माशाल्लाह बहुत हमारे साथ जी जी इनके साथ रहे, जी और माशाल्लाह बरकतें भी मिली। एक दफ़ा तो ऐसा हो कि हमने मुल्तान इज्तिमा के लिए बाई एयर हमने टिकट बुक कराई, अच्छा, हम दोनों ने। सही है। अच्छा, वो हुआ ये था कि कुछ काम था बाबा को जी, और जी। कुछ मेरी भी मसरूफियत थी, तो हमने जो है जुम्मे के रोज़ की जो है टिकट बुक करवा ली है सही है, बाई एयर। ठीक है। अब हमने जो है वो क्या हुआ, इत्तफाकन पीआईए की जो हड़ताल हो गई। अच्छा, अब हम लोग जो परेशान, उस टाइम तो पीआईए ही होगी, उसके अलावा और कोई होगा और भी थी, नहीं। अच्छा, लेकिन ये कि पीआईए की हमने टिकट बुक कराई तो पीआईए की हड़ताल हो गई। सही है। अब मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जनाब वो पीआईए की हड़ताल हो गई, हमें पहुंचना भी तो, क्योंकि सारा हमारे पास हिसाब किताब हम लोगों के पास था, अच्छा, बाबा के पास मौजूद था वो हिसाब किताब, मतलब हाँ। ट्रेन का और पूरा जो काफिला मुल्तान इज्तिमा में गया हुआ था 3 रोज़ा, तो पूरा हिसाब किताब मौजूद था। ये तो बड़ी आजमाइश हो गई होगी बहुत आपके ज़्यादा लिए। आजमाइश हो गई कि अगर हम लोग ना पहुंचे तो मसला। बिल्कुल। फिर हमने क्या एनी किया? टाइम फैसला किया कि हम लोग कोच से यहाँ से रवाना होते हैं। कोच से? जी हाँ, हम लोग हफ्ते को तकरीबन 12 या 1 बजे जी, कोच से रवाना हुए। सही है। अब हमने पूरा दिन सफ़र किया, पूरी रात सफ़र की, जाके फजर के बाद तकरीबन 9 या 10 बजे वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचे, वहाँ पर हमने इज्तिमा में शिरकत करी, करने के बाद जोहर के बाद जो इख्तिताम हुआ, जी। और दोबारा फिर वापस कराची। क्या बात है, मतलब आप लोग चाहते तो छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं छोड़ा। ये जिम्मेदारी है ना, बाबा इसलिए। बाबा हुजूर के बाद जो जिम्मेदारी थी वो आपने पूरी की, बेशक। जिस तरह भी पहुँचे जी। बाहर पहुँच गए। अच्छा हजरत, ये देखा गया हमने कि ये जो कुर्बानियाँ होती है ना, जैसे आपने भी जिक्र किया काफ़ी बाबा हुजूर के बारे में, आपने अपना भी जिक्र किया, तो हमने देखा है कि ये जो कुर्बानियाँ होती हैं तरीक़त के मामलात में, शरीयत के मामलात में, ये वक्ती तौर पे इंसान को थोड़ी भारी महसूस हो रही होती हैं, लेकिन अगर वो इन आजमाइशों पे वो इंसान पूरा उतर जाता है, वो कुर्बानियाँ दे लेता है, तो फिर आगे आगे मुस्तकबिल, बड़े मुस्तकबिल में मतलब काफ़ी सालों तक उसको ये फ़ायदा देती हैं, आखिरत तक उसका ये साथ निभाती है। बिल्कुल ऐसा ही है।
ऐसा ही है जी कि वो कुर्बानी आजमा मतलब जो वही है ना कि फना फिर शेख, फना फिर रसूल, फना फिल्ला, जी तो ये तो पहली सीढ़ी है। बिल्कुल इस पहली सीढ़ी पर ही अगर बंदा जो है अपने कदम मजबूत नहीं कर पाया तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? जी आजमाइश तो होती है। बिल्कुल अब जैसे आज की बात ले लीजिए, हुक्म हुआ, जी आप सर्दी आपको ही मालूम कितनी ज्यादा है इस टाइम पर, बिल्कुल। अभी तो शुरू हुई है हजरत सर्दी, मतलब सर्दी है और दिनों के मुकाबले आज ज्यादा है। याद ज्यादा है। आज मस्जिद में पहुंचना एक आजमाइश है, लेकिन जब हुक्म हुआ तो पहुंच गए। टाइम भी ऐसा है कि टाइम भी ऐसा, बंदा थका हुआ होता पूरे दिन का, लेकिन फिर भी नहीं यार ऐसे ही ऐसे बिल्कुल ऐसे ही, और जाना है। बाबा हुजूर ने कहा जाना है तो बस जाना बस जाना है। तो ये सिलसिला जो है, जब इस चीज को समझेंगे हम लोग तो जब ही तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा एजाज भाई, इस हवाले से अगर कुर्बानी की बात हो रही है तरीक़त के हवाले से और शरीयत के हवाले से, तो इस बारे में एक कौल है जो अक्सर हम बाबा हुजूर से सुनते रहते हैं कि जब बंदे पे कोई वक्ती तौर पे कोई मुसीबत या आजमाइश आती है या कोई भारीपन महसूस होता है किसी नेक काम को करने में, तो उसके जहन में ये बात होनी चाहिए कि यार ये जो टाइम है ना, ये जो मुशक्क़त है ये तो गुजर जाएगी, लेकिन इस मुशक्क़त में जो मैं नेकी करूँगा ना वो हमेशा बाकी रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो मज़े की खातिर गुनाह मत कर, जी अक़वाल ज़री में आता है जी जी कि मज़े की खातिर गुनाह मत कर, मज़ा जाता रहे गुनाह बाकी गुनाह रहेगा। बाकी रहेगा। और मुशक्क़त की खातिर कोई नेकी तर्क मत कर, जी जी मुशक्क़त जाती रहेगी क्या बात और है। नेकी बाकी रहेगी। अल्लाहू अकबर। तो बहुत ये तो समझने की बात है हजरत। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, हम समझेंगे तो पाएंगे ना, बिल्कुल और नहीं समझेंगे तो वहीं के वहीं रहेंगे। वही क्या वही, बिल्कुल सही कहा आपने। तो नाज़रीन कराम, ये थे हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान सैयद एजाज अहमद शाज़ली कादरी। तो इनसे हमने काफ़ी कुछ सीखने और समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपने भी बहुत कुछ हज़रत की गुफ्तगू से सीखा होगा। तो नाज़रीन कराम, अगले एपिसोड तक के लिए आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान रज़ा अत्तारी शाज़ली आपसे इजाज़त का तलबगार है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।